ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਗਿਲਜ਼ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ 28 ਦਸੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ, ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ, PPSC, PCS, SSC, CGL, CHSL ਔਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ, WhatsApp, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ, Facebook, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ। IBPS, RRB, JEE ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, SI ਔਰ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਬੈਚਿਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਰੋਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਨਰੋਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੰਪਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਲਿੰਕ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਜਾਂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟਰਡੇ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੈਟਿਕ ਫੈਕਟ ਦੇਖਦੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਰਹੇਗਾ। ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 25 ਦਸੰਬਰ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਡੇ। ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਡੇ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 96ਵੀਂ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਸੀ 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਰਸਟ ਟਰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇसी ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ, ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ, ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਇਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅ ਕਮੈਮੋਰੇਟਿਵ ਵੋਲਿਊਮ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਇਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅ ਕਮੈਮੋਰੇਟਿਵ ਵੋਲਿਊਮ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫੁੱਲੀ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਡਰਾਈਵਰਲੈਸ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਡਰਾਈਵਰਲੈਸ ਟ੍ਰੇਨ 37 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੰਜੇਟਾ ਲਾਈਨ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਫਲੈਗਡ ਆਫ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੋਸਟਲ ਸਟੈਂਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟੂ ਮਾਰਕ ਦਾ ਸੈਂਟੀਨਲ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਇਹ ਐਸੇ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਆਫਟਰ ਲਾਲ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ 18,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 9 ਕਰੋੜ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀਜ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ सम्मान निधि योजना ਦੇ ਅੰਡਰ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ सम्मान निधि योजना ਦੇ 9 ਕਰੋੜ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ 24 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਗੋਰਖਪੁਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆਨੋ ਰੋਨਾਲਡੋ ਜੋ ਕਿ ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫੁੱਟਬਾਲ ਗੋਲਡਨ ਫੁੱਟ ਅਵਾਰਡ 2020। ਫੁੱਟਬਾਲ ਗੋਲਡਨ ਫੁੱਟ ਅਵਾਰਡ 2020। ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਟਰ ਧਰਮੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਸੈਨੇਟ ਦੁਆਰਾ। ਨੇਹਾ ਸਿੰਘ ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਲਾਰਜੈਸਟ ਪੇਂਟਿੰਗ ਵਿਦ ਸਪਾਈਸ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਗਿਨੀਜ਼ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੂਜਾ ਦੇਵੀ ਫਰਸਟ ਵੂਮਨ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਬਣੇ ਨੇ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਵੂਮਨ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਪੂਜਾ ਦੇਵੀ। रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी द्वारा फाउंडेशन स्टोन रखा गया 18 हाईवे प्रोजेक्ट का 8,341 करोड़ रुपए दे
किथे राजस्थान दे विच अंडर भारतमाला प्रोजेक्ट 1127 किलोमीटर तकरीबन ये कनैक्ट किए जाएंगे। रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी द्वारा ही अनाउंसमेंट की गई कि फास्टैग मैंडेटरी कर दिते गए हैं हर व्हीकल के लिए 1 जनवरी 2021 तो, हर व्हीकल के लिए 2021 तो। यूनियन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर द्वारा अनाउंस किया गया कि इंडिया ग्लोबल मीडिया और फिल्म समिट 2021 नू होस्ट करेगा। ठीक है जी। इस तो इलावा नितिन गडकरी बारे याद रखना है नागपुर महाराष्ट्र तो लोक सभा MP ने, और प्रकाश जावड़ेकर बारे याद रखना है राज्य सभा MP ने महाराष्ट्र को। नेक्स्ट है गौतम गंभीर द्वारा जन रसोई, गौतम गंभीर जो कि ईस्ट दिल्ली तो MP ने, इन्हों द्वारा जन रसोई इनिशिएटिव नू लॉन्च किया गया। BCCI बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया दे जनरल बॉडीज़ दे विच अनाउंसमेंट की गई कि 10 टीम्स पार्टिसिपेट करनगियां IPL दे 2022 दे एडिशन दे विच। ठीक है जी। सोकर वेटलैंड कंपलैक्स है, जिहड़ा वेटलैंड कंपलैक्स है यह कित्थे है, ये चेटोंग रीजन लद्दाख दे विच है। इसनूं रामसर साइट डिक्लेयर किया गया। इसी दे नाल इंडिया दे विच टोटल 42 रामसर साइट्स हो चुकियां ने। ठीक है जी। इस तो इलावा रामसर कन्वेंशन याद रखांगे ईरान दे विच कंडक्ट की गई सी 2 फरवरी 1971 दे विच, और इस दे विच जिहड़ी रामसर साइट्स ने उसनूं ऐड करना शुरू किया गया 1975 दे विच। 2 फरवरी नूं हर साल आपां वैटलैंड डे ऑब्जर्व करते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है डिफेंस सैक्रटरी अजय कुमार। इंडिया के डिफेंस सैक्रटरी कौन ने? तो अजय कुमार ने। इन्हों द्वारा DGNCC डिजिटल फोरम न्यू दिल्ली दे विच लॉन्च किया गया। इंडिया द्वारा ही MOU साइन किया गया है टू एक्सपोर्ट राइस नू एक्सपोर्ट करने के लिए बांग्लादेश दे विच ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ राइस इन बांग्लादेश। इंडिया वियतनाम दे नाल पैसेज एक्सरसाइज कंडक्ट करन जा रही है। इंडिया ने वियतनाम दे नाल पैसेज एक्सरसाइज कंडक्ट की साउथ चाइना सी दे विच। इसी दे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, कह सकते हैं कि इस दे विच एक हिडन न्यूज़ सी उसनू स्टडी करांगे। साउथ चाइना सी हनोई डोंग कैपिटल याद रखांगे, इंपॉर्टेंट है। 16वां इंडिया यूरोपियन समिट, बेसिकली यूरोपियन यूनीयन की गल करते हैं। यूरोपियन यूनीयन दे विच 28 कंट्रीज़ होंदियां सी। एक कंट्री ने एग्जिट किया, किहड़ी कंट्री? ब्रिटेन, यानी कि 27 मैंबर कंट्रीज़ ने। इस दे नाल इंडिया समिट ऑर्गेनाइज करता है। इसका 16वां एडिशन 15वां एडिशन वर्चुअल फॉर्म दे विच ऑर्गेनाइज किया गया। 2 महीने पहले भी आप डिस्कस किया सी। 16वां एडिशन अनाउंस किया गया कि पुर्तगाल दे विच ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ठीक है जी। ब्रुसल्स बेल्जियम दे विच इसका हैडकुआटर है, और प्रेसिडेंट कौन ने? उर्सुला वॉन डेर लायन। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक द्वारा अनाउंसमेंट की गई कि एक हॉकी स्टेडियम बनाया जाएगा बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी रोएकेला डिस्ट्रिक्ट दे विच। और जिहड़ा यह स्टेडियम बनाया जाएगा ये इंडिया का सब तो वड्डा हॉकी स्टेडियम होएगा, जिस दे विच तकरीबन 20,000 लोग बैठ सकणगे, जिहड़ा कि 2023 मेंस हॉकी वर्ल्ड कप भी होस्ट करेगा। केरला गवर्नमेंट द्वारा यूनाइटेड नेशंस वूमेन दे नाल कोलैबोरेटेड की गई है टू सैटअप इंडियाज़ फर्स्ट जेंडर हब। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया S.A. बोबडे, इंडिया के चीफ जस्टिस S.A. बोबडे इनोग्रेट कर रहे हैं ई सर्विस सेंटर इनोग्रेट किया इन्होंने। 47वें नंबर के चीफ जस्टिस ने ये याद रखांगे। ई सर्विस सेंटर कित्थे किया? तो त्रिपुरा हाईकोर्ट दे विच। त्रिपुरा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन ने? तो अखिल खुरेशी। नैक्सट है स्टैटिक पोर्शन के फोक डांसिस शुरू करन जा रहे हैं। इस तो इलावा मिलिट्री एक्सरसाइजिज की डिमांड आई सी, वह भी स्टडी करांगे। इस तो इलावा लेक्स डिस्कस करांगे। लेक्स की डिमांड काफ़ी टाइम तो चल रही है। इस तो बाद आप पहले लेक्स डिस्कस करांगे। आंध्र प्रदेश कूचीपुड़ी
ਭਮਲਕਲਮ ਔਰ ਭੋਮਾਲੂ। ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੁਚੀਪੁੜੀ ਡਾਂਸ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਮਕ ਕਲਪਮ ਔਰ ਭੋਮਾਲੂ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਲੋ, ਵਾਂਚੋ, ਪਾਸੀ ਕੌਂਕੀ, ਬਾਰਦੋ ਛਾਮ ਇਹ ਫੋਕ ਡਾਂਸਿਸ ਨੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ। ਅਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਹੂ ਡਾਂਸ ਫਾਰਮ ਵੀ ਹੈ, ਬਿਹੂ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਅਸਮ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਗਾ ਡਾਂਸ, ਝੁਮਾਰਾ, ਨਟ ਪੂਜਾ ਔਰ ਸਤਰੀਆ ਇਹ ਕਾफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली अगर आप लास्ट के कुछ एग्जाम्स की गल करिए तो PSPCL के एग्जाम के पूछा गया सी। उस तो पहले पुडा का एग्जाम सीगा, उसदे विच भी पूछा गया सी। और उस तो पहले एक होर एग्जाम सी, आई थिंक मेरे माइंड चो स्किप कर, AG एडवोकेट जनरल ऑफिस के क्लर्क का एग्जाम होया सी, उसदे विच भी यह पूछा गया सी कि सतरिया डांस फॉर्म किहड़ी स्टेट का है, तो असम का है। ठीक है जी। नैक्सट चलते हैं अज की फर्स्ट न्यूज़ के वाल। फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तो विच डे इज़ ऑब्जर्वड एज इंटरनेशनल डे ऑफ एपीडेमिक प्रिपेयर्डनेस। विच डे इज़ ऑब्जर्वड एज इंटरनेशनल डे ऑफ एपीडेमिक प्रिपेयर्डनेस। इस दिन नू किस दिन ऑब्जर्व किया गया? याद होएगा सानू आपां ये न्यूज़ पहले भी डिस्कस की सी। इसका फर्स्ट एडिशन है, पहली बार इसनू ऑब्जर्व किया गया है। बेसिकली 2020 जिहड़ा साल है, इस साल दे विच कोविड-19 एक पैंडेमिक दे नाल किस तरीके नाल डील किया गया, की परेशानियां आईयां, इस दिन के लिए अवेयर करने के लिए यह दिन यूनाइटेड नेशनस द्वारा यूनाइटेड नेशनस द्वारा अनाउंस किया गया सी। तो कदों ऑब्जर्व किया गया? 27 दिसंबर नूं, यानी कि संडे कल दे दिन ऑब्जर्व किया गया इंटरनेशनल डे ऑफ एपीडेमिक प्रिपेयर्डनेस। ठीक है जी, याद रखांगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। नैक्सट चलते हैं। इस तो इलावा एक दिन अपना स्किप हो गया सी, और डिस्कस करते हैं कि 25 दिसंबर नूं आपां हुणे डिस्कस करके हटिया। 25 दिसंबर नूं किहड़ा दिन ऑब्जर्व किया गया? गुड गवर्नेंस डे। इस तो इलावा पंडित मदन मोहन मालवीया की बर्थ एनिवर्सरी भी 159th एनिवर्सरी सी जिहड़ी वह भी 25 दिसंबर नूं रही सी। 25 दिसंबर नूं ही पंडित मदन मोहन मालवीया की भी बर्थ एनिवर्सरी है। ठीक है जी। इन्हां दा नाम इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि यह बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU के नाम नाल जानते हैं। और रिसेंटली 2 इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी डिस्कस करके हटे आप BHU रिलेटेड। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के फाउंडर रह चुके हैं पंडित मदन मोहन मालवीया। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ चेयरमैन ऑफ मेंस क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी। बेसिकली BCCI बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया, इसके बारे आप हुणे डिस्कस करके हटे हैं। इसके प्रेसिडेंट का नाम याद रखांगे सौरभ गांगुली ने, और वाइस प्रेसिडेंट रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं, बिल्कुल रिसेंटली राजीव शुक्ला ने। ठीक है जी। इस तो इलावा जी इंडियन मैन टीम है और इंडियन वूमेन टीम है, दोनों के लिए सिलेक्शन कमेटी बनती है। तो मैन टीम के लिए सिलेक्शन कमेटी बनाई गई है, उसके चेयरमैन अपॉइंट किए गए चेतन शर्मा। ठीक है जी। इसी तरीके नाल कुछ टाइम पहले आप डिस्कस किया सी, वूमेन्स सिलेक्शन कमेटी के हैड बनाए गए सी नीना राय, याद रखेंगे। ठीक है जी। इस तो इलावा अभय कुराविला और देवाशीष मोहंती ये दोनों भी अपॉइंट किए गए हैं एज ए कमेटी के मैंबर, याद रखांगे। इस तो इलावा एक नाम होर याद रखांगे रवि शास्त्री ने जिहड़े ये मैंस क्रिकेट टीम के कोच ने। इंडिया की मैंस क्रिकेट टीम के कोच कौन ने? तो रवि शास्त्री ने। ठीक है जी। रजिंदर सच्चर की गल करते हैं, ये जस्टिस ने, फॉर्मर जस्टिस कहांगे, जज कहांगे। इन्हां रिलेटेड एक न्यूज़ है, इन्हां दी ऑटोबायोग्राफी रिलीज़ की गई है, और डिस्कस कर लेने कि जस्टिस रजिंदर सच्चर एक की परसन सच्चर कमेटी दे, जो कि 2006 दे विच सी। 2006 दे विच सच्चर कमेटी बनाई गई सी। बेसिकली मुस्लिम के वैलफेयर के लिए इस कमेटी को बनाया गया सी, और उस कमेटी के हैड कौन सी? रजिंदर सच्चर। इन्हां दे नाम के उत्ते ही कमेटी सी, जस्टिस रजिंदर सच्चर। इन्हां दी एक बुक है, ऑटोबायोग्राफी है, यानी कि इन्हां दे खुद द्वारा ही इन्हां दी लाइफ स्टोरी के उत्ते बुक लिखी गई, इन परस्यूट ऑफ जस्टिस एंड ऑटोबायोग्राफी। इस बुक नूं पोस्टमसली लॉन्च किया गया, यानी कि इन्हां दी डैथ तो बाद
लॉन्च किया गया है इंडियन सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड द इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट द्वारा। ठीक है जी, डायरैक्टली याद रखांगे कि इन परस्यूट ऑफ जस्टिस एंड ऑटोबायोग्राफी ये बुक किन्ना दी सी तो रजिंदर सच्चर द्वारा इस बुक नूं लिखिया गया। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा, ओडिशा सरकार द्वारा कोलैबोरेट किया गया है किस दे नाल, ताकि एक कैरियर पोर्टल लॉन्च किया जा सके सैकेंडरी और हायर सैकेंडरी स्टूडेंट्स के लिए, ताकि उन्होंने काउंसलिंग दी जा सके या कह सकते हैं एक्सपर्ट एडवाइस दी जा सके उन्होंने फ्यूचर कैरियर के लिए। ठीक है, बेसिकली जो 10वीं के बच्चे हो गए या +2 के बच्चे हो गए उन्होंने अगे जाके की करना चाहिए एक एक्सपर्ट एडवाइस के लिए कि उन्होंने किस फील्ड के इंटरस्ट है, उस हिसाब के नाल उन्होंने की करना चाहिए। तो इस तरीके की कैरियर पोर्टल लॉन्च किया गया उड़ीसा सरकार द्वारा। उस पोर्टल के लिए किन्ना दे नाल एग्रीमेंट साइन किया गया, यूनीसैफ के नाल। किन्ना दे नाल, यूनीसैफ। यूनीसैफ की गल करते हैं तो यूनीसैफ की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस, यूनीसैफ की स्पैलिंग मिस्टेक आई थिंक, सॉरी, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल कल्चरल एजुकेशनल एंड साइंटिफिक रिसर्च। ये यूनेस्को की फुल फॉर्म है। और यूनीसैफ की गल करते हैं, यूनीसैफ की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड यूनीसैफ की फुल फॉर्म है। ठीक है जी, इसका आंसर की है यूनीसैफ है। मेरे माइंड चो थोड़ा कन्फ्यूजन हो गई सी। अच्छा, यूनेस्को की गल करते हैं, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, UN यूनाइटेड नेशंस, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूरोपियन यूनियन हुणे आपां डिस्कस करके हटे। ठीक है, हुण इन्हां दे हैडकुआटर कित्थे कित्थे ने, हैडकुआटर दसने ने तो यूनेस्को का हैडकुआटर पैरिस फ्रांस दे विच है, यूनीसैफ का हैडकुआटर न्यूयॉर्क दे विच है, यूनाइटेड नेशंस का हैडकुआटर भी न्यूयॉर्क दे विच है, WHO लॉजेन स्विट्जरलैंड दे विच है और यूरोपियन यूनियन बेल्जियम ब्रुसल्स बेल्जियम दे विच है। ठीक है, यूनीसैफ के हैड का नाम याद रखांगे HH4। HH4 यूनीसैफ के हैड ने। यूनेस्को के हैड ऑड्रे ऑजले। ठीक है जी, इसी तरीके नाल यूनाइटेड नेशंस के एंटोनियो गुटरस, WHO के टेड्रोस एडानोम, इसी तरीके नाल यूरोपियन यूनियन के हुणे डिस्कस करके हटे हैं उर्सुला वॉर डेल लेन। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद तानसेन अवार्ड बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट इन ग्वालियर MP। बेसिकली ये न्यूज़ है जी काफ़ी इंटरस्टिंग रहेगी कि जिस तरीके नाल आपां डिस्कस करते हुए डिफरेंट स्टेट्स द्वारा डिफरेंट अवार्ड दिते जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर स्टेट एक पर्टिकुलर अवार्ड दे रही है, सिमिलर तरीके नाल तानसेन अवार्ड है जिहड़ा ये MP सरकार दिंदी है। जिस तरीके नाल आपां ने डिस्कस किया सी मंगेशकर अवार्ड, लता मंगेशकर अवार्ड ये महाराष्ट्र सरकार दिंदी है। ठीक है, इसी तरीके नाल सुनंदा सम्मान ये उड़ीसा सरकार दिंदी है। ठीक है जी, इसी तरीके नाल जिहड़ा तानसेन अवार्ड है ये MP गवर्नमेंट दिंदी है। MP गवर्नमेंट हर साल इसनूं ग्वालियर MP तो दिता जाता है। और इस साल किन्ना नूं दिता गया है, इस साल यह दिता गया सतीश व्यास, पंडित सतीश व्यास। ठीक है जी, 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ इसनूं शुरू किया गया सी, ईयर 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ 2020 ਦਾ अवार्ड सतीश व्यास नूं दिता गया। अच्छा, इसी दे नाल अगर गल करते हैं 2019 का अवार्ड दिता गया सी गंगाधर विद्याधर नूं। 2019 का अवार्ड गंगाधर विद्याधर नूं। उदय शंकर की गल करते हैं, फिक्की के हैड अपॉइंट किए गए सी, याद रखांगे। बाकी दो ऑप्शन रिलेटेड न्यूज़ है, एक ऑबेचुरी है, डिस्कस करते हैं। तो सब तो पहले आर्या राजेंद्रन 21 साल की एक लड़की है जिसने तिरुवेंद्रम केरला तो बिलोंग करती है और इंडिया की यंगेस्ट मेयर बनन जा रही है। ठीक है जी, इंडिया की यंगेस्ट मेयर बेसिकली इलैक्शनस उत्थे कंडक्ट किए गए सी तो उस दे विच जित रही है लड़की है तो तिरुवेंद्रम केरला तो आर्या राजेंद्रन। नेक्स्ट है शमसूर रहमान फरूकी। ये कौन ने, किस फील्ड तो बिलोंग कर दिंदा, उर्दू पोएट ने शमसूर रहमान फरूकी। इन्हां दी रिसेंटली डेथ हो गई है। इन्हां नूं सरस्वती सम्मान दिता गया सी, इस करके इन्हां दा नाम इंपोर्टेंट रहेगा।
सरस्वती सम्मान 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਸ਼ੌਰ ਅੰਗੇਜ਼ ਦੇ ਲਈ। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्टर हैज़ लॉन्च स्वच्छता अभियान एप्लीकेशन। स्वच्छता अभियान एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन नू किन्ना द्वारा लॉन्च किया गया? इस एप्लीकेशन नू लॉन्च किया गया थनवर चंद गहलोत, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर बेसिकली कि इस मिनिस्ट्री द्वारा अनाउंस किया गया थनवर चंद गहलोत द्वारा कि ਜਿਹੜੇ टॉयलेट्स अच्छे तरीके नाल नहीं बने हुए, ठीक है, या पुराने टाइम के बने हुए ने, उन्होंने जी फैसिलिटी है अच्छे तरीके नाल काम नहीं कर रही है, उन्होंने अपग्रेड किया जाएगा इस दे अंडर, ठीक है। इस एप्लीकेशन हर एक नू डाउनलोड करने के लिए अवेल किया गया कि इस दे विच कि डाउनलोड करके अगर थोड़े नज़दीक कोई टॉयलेट वगैरह इस तरीके का बनया होया जिस दे विच प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं है तो उसनू फंक्शनिंग की जाएगी सरकार द्वारा, ठीक है जी। तो इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया थनवर चंद गहलोत द्वारा। थनवर चंद गहलोत राज्य सभा MP ने मध्य प्रदेश तो। इस तो इलावा बाकी ऑप्शंस की गल करते हैं तो नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर वाराणसी UP तो लोक सभा MP, रमेश पोखरियाल निशांक एजुकेशन मिनिस्टर हरिद्वार उत्तराखंड तो लोक सभा MP, डॉक्टर हर्षवर्धन हेल्थ मिनिस्ट्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री और अर्थ साइंस मिनिस्ट्री चांदनी चौक दिल्ली तो लोक सभा MP, और गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मिनिस्टर जोधपुर राजस्थान तो लोक सभा MP। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्टर हैज़ लॉन्च संपदा वेब पोर्टल। आप डिस्कस किया स्वच्छता अभियान एप्लीकेशन, इसी तरीके नाल संपदा एप्लीकेशन और वेब पोर्टल लॉन्च किया गया फॉर अलॉटमेंट ऑफ गवर्नमेंटल रेजिडेंशियल अकोमोडेशनस। गवर्नमेंटल रेजिडेंशियल अकोमोडेशनस की अलॉटमेंट करने के लिए, इस तो इलावा किसी भी तरीके की कंप्लेंट्स वगैरह नू टैकल करने के लिए हाउसिंग के रिलेटेड इसनू लॉन्च किया गया हाउसिंग मिनिस्टर द्वारा। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी, फर्स्ट ऑप्शन हरदीप सिंह पुरी द्वारा इसनू लॉन्च किया गया। हरदीप सिंह पुरी की गल करते हैं राज्य सभा MP ने UP तो, और हाउसिंग मिनिस्ट्री तो इलावा सिविल एविएशन मिनिस्ट्री होल्ड कर रहे हैं। महेंद्र नाथ पांडे स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर ने, इन्होंने रिलेटेड न्यूज़ है डिस्कस करते हैं। प्रहलाद सिंह पटेल इन्होंने लवे कल्चर मिनिस्ट्री और टूरिज्म मिनिस्ट्री है, इन्होंने रिलेटेड भी न्यूज़ है डिस्कस करते हैं। श्री किरण रिजिजू स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने, इन्होंने रिलेटेड न्यूज़ है डिस्कस करते हैं। श्रीपति यसो नायक आयुष मिनिस्टर ने, आयुष मिनिस्टर अरुणाचल वेस्ट तो लोक सभा MP ने, सॉरी एक आयुष मिनिस्टर ने, और नॉर्थ गोवा तो लोक सभा MP ने, ठीक है जी। डिस्कस करते हैं इंपोर्टेंट न्यूज़ ने। सब तो पहले महेंद्र नाथ पांडे स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर महेंद्र नाथ पांडे द्वारा फर्स्ट बैच लॉन्च किया गया ट्रेनिंग दा टाटा इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स मुंबई। टाटा इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स मुंबई है जिहड़ा उत्थे ट्रेनिंग दे लई स्किल ट्रेनिंग दे लई फर्स्ट बैच लॉन्च किया गया। बेसिकली एक इनिशिएटिव है इंडियन गौरमेंट का, इंडिया की स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का टाटा दे नाल एग्रीमेंट साइन किया गया सी स्किल ट्रेनिंग दे लई, और इसनू इस दे लई फर्स्ट बैच लॉन्च कर दिता गया। प्रहलाद सिंह पटेल ने जिहड़े एक कल्चर एंड टूरिज्म मिनिस्टर ने, इन्हां द्वारा अलाउड किया गया फ्री शूटिंग ये किहड़ी शूटिंग है जिहड़ी मूवीज़ की शूटिंग वगैरह की जाती है ASI मोनूमेंट्स दे विच। ASI यानी कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इत्थों क्वेश्चन किस तरीके नाल पूछे जाएंगे कि जिहड़े प्रहलाद सिंह पटेल ने उन्होंने लवे केड़ी मिनिस्ट्री है, ये कल्चर एंड टूरिज्म मिनिस्ट्री किन्ना लवे है, पहला क्वेश्चन। दूसरा ASI की फुल फॉर्म आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तीसरा इस द हैडकुआटर न्यू दिल्ली दे विच। चौथा इस दे हैड कौन ने, रिसेंटली वूमेन फर्स्ट वूमेन हैड ASI दे अपॉइंट किए गए सी, कमेंट बॉक्स दे विच नाम दसने, ठीक है जी। अच्छा इसनू कदों तक दे लिए ओपन किया गया, 15 अगस्त तक दे लिए ओपन किया गया है। ये क्यों किया गया, ताकि
75th ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸਦੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਇਹ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। किरण रिजिजू की गल करते हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने, ये न्यूज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि जी ब्रह्मपुत्र रिवर है, इतों काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि जी ब्रह्मपुत्र रिवर है ये इंडिया की सिर्फ 2 स्टेट्स के विचों लंघदी है। पहले तो यही याद रखांगे। ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर इंडिया की किहड़ी 2 स्टेट्स तो लंघदी है, तो असम और अरुणाचल प्रदेश के विचों ट्रैवल करती है। ठीक है, इस दे विच 917 किलोमीटर राफ्टिंग एक्सपीडिशन कि लोगों को राफ्टिंग के लिए प्रमोट करने के लिए राफ्टिंग गेम नूं किरण रिजिजू द्वारा फ्लैगड ऑफ की गई एक राफ्टिंग एक्सपीडिशन ब्रह्मपुत्र आमंत्रण अभियान, ब्रह्मपुत्र आमंत्रण अभियान कि ब्रह्मपुत्र रिवर दे विच राफ्टिंग की जा रही है, इस दे विच पार्टिसिपेट करवाने के लिए लोगों। दूसरी चीज़, ब्रह्मपुत्र रिवर है जी ये कित्थों ओरिजिनेट करती है, तो तिब्बत तो ओरिजिनेट करती है ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है जी, या कहांगे चाइना तो ओरिजिनेट करती है। ठीक है जी। इस तो इलावा आंध्र प्रदेश के इसनूं ब्रह्मपुत्र के नाम तो नहीं जाना जाता, इसनूं सियांग रिवर के नाम तो जाना जाता है। आंध्र प्रदेश के इस रिवर नूं सियांग कहा जाता है, असम के ब्रह्मपुत्रा कहा जाता है, और बंगलादेश के जाती है उस तो बाद ये, तो बंगलादेश के इसनूं जमुना, यमुना नहीं कह रहे, वाई तो नहीं कहांगे, जे तो जमुना, जमुना के नाम के नाल जानिया जाता है। ठीक है जी, ये सारे फैक्ट इंपोर्टेंट बनने, किते ना किते एग्जाम के पूछे जा सकते हैं, याद रखांगे। ठीक है जी, चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन के वल। विच बैंक हैज़ टॉप्ड अमंग 100 बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस कंपनीज इन द कंट्री एज पर BFSI मूवर्स एंड शेकर्स 2020। कि एक इंडेक्स जारी किया गया BFSI मूवर्स और शेकर्स 2020 द्वारा। BFSI की फुल फॉर्म बेसिकली बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस कंपनीज, इतने लिखी हुई है बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस कंपनीज। तो 100 बैंक्स दे विचों इंडिया दे विच किसने टॉप किया है, तो HDFC बैंक ने पहले नंबर पर HDFC बैंक, दूसरे नंबर पर ICICI और थर्ड नंबर पर SBI रहे। ठीक है जी, ये जारी की गई रैंकिंग, याद रखांगे। नेक्स्ट है, विच एडिशन ऑफ बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया, BCCI रिलेटेड एक होर इंपोर्टेंट न्यूज़ कि BCCI की एनुअल जनरल मीटिंग ऑर्गेनाइज की जा रही है अहमदाबाद गुजरात दे विच। BCCI की मीटिंग इस साल कित्थे ऑर्गेनाइज की गई, तो अहमदाबाद गुजरात दे विच। किन्नवें एडिशन की ऑर्गेनाइज की गई, तो 89th नंबर की एडिशन। 2 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस दोनों याद रखांगे। ठीक है जी। इस तो इलावा फैक्ट BCCI आप डिस्कस कर लेने कि मुंबई के हैडक्वार्टर है, सौरव गांगुली प्रेसिडेंट ने, 39th नंबर के प्रेसिडेंट ने, और इस तो इलावा ਜਿਹੜੇ रिसेंटली अपॉइंट किए गए राजीव शुक्ला वाइस प्रेसिडेंट ने। ठीक है जी, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ डेवलप्ड वर्ल्ड लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप, केड़ी कंट्री द्वारा वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप डेवलप किया गया। वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप बनाया गया चाइना द्वारा। ठीक है जी, केड़ी कंट्री द्वारा बनाया गया, चाइना द्वारा बनाया गया। अगर आप गल करते हैं इस नाम की, तो इसका नाम शॉर्टकट के इसनूं फास्ट किया जाता है, फास्ट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म डिस्कस कर लें। इस तो इलावा UK के एक क्रिकेटर ने उन्होंने डेथ हो गई है, उसके रिलेटेड डिस्कस करते हैं। तो चाइना द्वारा वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप 500 मीटर अपैरेटस स्फेरिकल टेलीस्कोप, 500 मीटर अपैरेचर स्फेरिकल टेलीस्कोप, और शॉर्ट फॉर्म के इसनूं फास्ट कहा जा रहा है। ठीक है जी। इस तो इलावा UK के क्रिकेटर से जॉन एडरिच, इंग्लैंड फॉर्मर क्रिकेट प्लेयर जॉन एडरिच की रिसेंटली डेथ हो गई है। ठीक है जी, किहड़ी कंट्री तो बिलोंग करते सी, तो इंग्लैंड तो, और कह सकते हैं कि किहड़ी स्पोर्ट्स तो बिलोंग करते सी, तां क्रिकेट तो बिलोंग करते सी। नेक्स्ट है कि FIFA हैज़ कैंसल्ड अंडर 17 एंड अंडर 20 वर्ल्ड कप ऑफ 2021। Which country is going to host
अंडर 17 वर्ल्ड कप इन 2023। बेसिकली इवेंट्स की डिस्कशन करते हैं सब तो पहले कि फीफा दे 3 तरीके के इवेंट्स होंगे ने, अंडर 17, अंडर 20 और सीनियर वर्ल्ड कप। ठीक है, अंडर 17 मेंस वाला और अंडर 20 मेंस वाला 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡਕਟ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫੀਫਾ ਨੇ ਅੰਡਰ 17 ਔਰ ਅੰਡਰ 20 2021 ਦੇ ਮੈਨਸ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਸੀਗੇ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ 2023 ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ 2023 ਉਹੀ ਸੇਮ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੋਸਟ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਅੰਡਰ 17 कौन होस्ट कर रही थी, पहले भी पेरू होस्ट कर रही थी 2021 का, तो हुण 2023 दे विच होस्ट करेगी। ठीक है, तो अपना आंसर है सेकंड ऑप्शन। इसी तरीके नाल 2021 दे विच अंडर 20 है जिहड़ा इंडोनेशिया होस्ट कर रही थी और 2023 दे विच भी इंडोनेशिया होस्ट करेगी। ठीक है जी, ये याद रखांगे। इस तो इलावा अंडर 17 वूमेंस वर्ल्ड कप है जिहड़ा अंडर 17 वूमेंस वर्ल्ड कप 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਹੋਸਟ ਕਰੇਗਾ, याद रखना है। अंडर 20 वूमेंस वर्ल्ड कप भी 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ और यह कोस्टा रिका होस्ट करेगा। सीनियर वर्ल्ड कप ਆਪਾਂ काफ़ी बार डिस्कस किया हुआ है कि 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ कतर होस्ट करेगा, 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ USA कैनेडा और मैक्सीको होस्ट करेगा। दोनों किहड़े इवेंट्स ने, मैन दे इवेंट ने। वूमेंस की गल करते हैं, आप डिस्कस किया है कि न्यूजीलैंड और किस दे नाल मिलके ऑस्ट्रेलिया दे नाल मिलके इसनूं होस्ट करेगा 2023 दे विच। ठीक है जी, ये जी पूरी लिस्ट है, ये काफ़ी बार मैं तुहानूं दे चुकिया, आई होप तुहाडे लवे होएगी। उत्थे बस हल्का जिहा चेंज कर लियो कि 2021 के जिहड़े इवेंट्स ने वो 2023 दे विच चले गए ने। ठीक है जी, इस तो इलावा कैपिटल करंसीज इंपोर्टेंट बन गई। तो इंडोनेशिया कैपिटल जकार्ता, करंसी रुपया चलती है। पेरू कैपिटल लीमा, करंसी सोल चलती है। क्रोशिया कैपिटल जैग्रेब, करंसी कूना। गैबोन कैपिटल लिब्रेविले, करंसी फ्रैंक। और वियतनाम कैपिटल हनोई, करंसी डोंग चलती है। तीनों रिलेटेड एक न्यूज़ है, डिस्कस करते हैं। तो सब तो पहले इंडिया की क्रोशिया के नाल वर्चुअल मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई। इंडिया वालों एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, डिप्टी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कहांगे या मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स वी मुरलीधरन ने पार्टिसिपेट किया। कैपिटल करेंसी इंपोर्टेंट रहेगी, याद रखांगे। सिमिलर तरीके नाल गैबोन दे नाल भी मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई, वर्चुअल मीटिंग। इस दे विच भी सेम एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर वी मुरलीधरन द्वारा पार्टिसिपेट किया गया। ठीक है जी, बेसिकली ईयर की एंडिंग है, इस एंडिंग दे विच काफ़ी ज़्यादा मीटिंग्स ऑर्गेनाइज कीतियां जांदियां ने, क्योंकि जिन्ने भी ट्रेड एग्रीमेंट्स वगैरह होंदे ने उन्होंने रिव्यू किया जाता है। ठीक है, इस तो इलावा इंपोर्टेंट रहेगा कि जी गैबोन है एक साउथ अफ्रीकन कंट्री है और इस दे विच काफ़ी इंपोर्टेंट मिनरल्स मिलते हैं। इसी करके इंडिया इस कंट्री के नाल काफ़ी ज़्यादा ट्रेड करता है, मिनरल्स वगैरह काफ़ी पाए जाते हैं इस कंट्री के विच। गैबोन कैपिटल करंसी इंपोर्टेंट रहेगी, याद रखना। ठीक है जी, हुण गल करते हैं वियतनाम की। वियतनाम जिहड़ी कंट्री है, बेसिकली वियतनाम के बारे आपां हुणे डिस्कस किया कि इस दे नाल एक पैसेज एक्सरसाइज कंडक्ट की गई। ठीक है जी, बेसिकली पैसेज एक्सरसाइज फ्रंट न्यूज़ है, इस दे विच एक मेन हिडन न्यूज़ सी कि इंडिया वियतनाम दे विच जिहड़ा इंडिया का शिप गया किल्टन, INS किल्टन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए गया सी। सुनो याद होएगा मिशन सागर का फर्स्ट एडिशन गया 5 कंट्रीज़ दे विच, मिशन सागर का सैकेंड एडिशन गया। ठीक है, जिस दे विच डिफरेंट INS पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो हुण INS मिशन सागर 3 के अंडर वियतनाम गया सी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस लैके और वापसी ते पैसेज एक्सरसाइज कंडक्ट की गई। ठीक है जी, तो क्वेश्चन अगर पूछे जाते कि पैसेज एक्सरसाइज के विच किहड़े INS ने पार्टिसिपेट किया, तो भी आंसर किल्टन है। या फिर मिशन सागर 3 के अंडर वियतनाम किहड़ा INS गया सी, तो भी INS किल्टन। ठीक है जी, ऐसे डिटेल दे विच लिखा हुआ है कि मिशन सागर 3 INS किल्टन दे नाल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज़ लॉन्च अ मोबाइल एप्लीकेशन PR Insight।
PR ਇਨਸਾਈਟ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਟੂ ਮੋਨੀਟਰ ਦਾ ਫੀਡਬੈਕ ਐਂਡ ਸਬਸੀਕੁਐਂਟਲੀ ਇੰਪਰੂਵ ਦਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੈਂਟਰਿਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਿ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੈਂਟਰਿਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮਸ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੀਡਬੈਕ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਉਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਆਪਾਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜੀਰਕਪੁਰ ਰਿਲੇਟਡ। ਜੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈ ਸਪੋਰਟਸ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮਿਸ਼ਨ 100% ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਲਈ ਯੂਥ ਆਈਕਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨੋਗਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦੁਆਰਾ ਇਨੋਗਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ। ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ MP ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੋਰਿਆਣਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ MP ਨੇ। ਕੋਵਾ ਪੰਜਾਬ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਈ ਰਖਵਾਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਰਟ ਕਨੈਕਟ ਸਕੀਮ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਿਲੇਟਡ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਇੱਕ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਟੇਡੀਅਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਟੇਡੀਅਮ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਮੂਲਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਟੇਡੀਅਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਇਸੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀਨੀ ਮਹਾਜਨ ਫਰਸਟ ਵੂਮਨ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਰ ਕੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੈਲਵਨਾਈਜ਼ਡ ਰਬੜ ਪਲਾਂਟ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੈਲਵਨਾਈਜ਼ਡ ਰਬੜ ਪਲਾਂਟ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਨਸਰ ਦੱਸਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਫਰਸਟ ਗੈਲਵਨਾਈਜ਼ਡ ਰਬੜ ਪਲਾਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਨਸਰ ਦੱਸਣਾ। ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਨੋਗਰੇਟ ਕਰਨਗੇ 351 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੁਰਜਾ ਬਪੂਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲਾਰਜੈਸਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਈਸਟਰਨ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਫਰਾਈਟ ਕੋਰੀਡੋਰ ਇਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਬੇਸਿਕਲੀ ਟ੍ਰੇਨਸ ਦਾ ਅਗਰ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਈਸਟਰਨ ਕੋਰੀਡੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਨਸ ਦਾ ਉਹ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਸ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਯੂਪੀ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾਰਦਰਨ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਈਸਟਰਨ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਫਰਾਈਟ ਕੋਰੀਡੋਰ ਈਸਟਰਨ ਸੈਕਸ਼ਨ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਈਸਟਰਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮ ਵਗੈਰਾ ਸਟੇਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਈਸਟਰਨ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਫਰਾਈਟ ਕੋਰੀਡੋਰ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਦਾ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ 351 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਖੁਰਜਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭੋਪੁਰ ਤੱਕ। ਭੋਪੁਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਇਨੋਗਰੇਟ ਕਰਨਗੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ। MP ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਕਿ ਧਰਮ स्वतंत्र या कह सकते हैं रिलीजियस फ्रीडम धर्म स्वतंत्रता या कह सकते हैं रिलीजियस फ्रीडम बिल पास किया गया कि कोई भी परसन अपना रिलीजन है जिहड़ा आपकी मर्जी के नाल चूज कर सकते। कैबिनेट द्वारा इसनूं अप्रूवल दी गई है। इस तो इलावा MP रिलेटेड काफ़ी इंपोर्टेंट न्यूज़ कि इंडिया का पहला टाइगर रिजर्व हॉट बैलून सफारी हॉट एयर बैलून होंदे ने जिहड़े उस दे विच ट्रैवल कह सकते हैं कि जिस तरीके नाल अगर आप जू वगैरह दे विच जाने तो आप या तो पैदल ट्रैवल करते हैं या
ट्रोलीज वगैरह लगियां होंदियां ने, कार ट्रोलीज वगैरह, उसदे विच ट्रैवल किया जाता है। ठीक है, इसी तरीके नाल जिहड़े नैशनल पार्क्स वगैरह ने इन्हां दे विच एक रिस्ट्रिक्टेड प्लेसिस होंदियां ने कुछ, उत्थे ट्रैवल नहीं किया जा सकता, तो उत्थे ट्रैवल करवाउण दे लई ही हॉट एयर बैलून सर्विस लॉन्च की गई। पहली बार इंडिया दे ऐसा पहला टाइगर रिजर्व बने जिथे इसनूं लॉन्च किया गया। तो किहड़ा टाइगर रिजर्व? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व डायरैक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा कित्थे है, तो MP दे विच। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कित्थे है, तो MP दे विच। ठीक है जी, याद रखांगे। इसी तरीके नाल राजा जी टाइगर रिजर्व भी न्यूज़ दे विच रहा सी, इत्थे ऐड करना रह गया, सिंपली याद रख लियो कि राजा जी टाइगर रिजर्व कित्थे है, उत्तराखंड दे विच है। राजा जी टाइगर रिजर्व कित्थे है, उत्तराखंड दे विच है। ये क्यों न्यूज़ दे विच सीगा? क्योंकि जिहड़ा जिम कॉर्बेट नैशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नैशनल पार्क है, वो भी उत्तराखंड दे विच है। उत्थों टाइगर्स नूं शिफ्ट किया गया सी राजा जी टाइगर रिजर्व दे विच, या कह सकते राजा जी नैशनल पार्क दे विच। इस करके न्यूज़ दे विच सीगा। सिमिलरली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजा जी टाइगर रिजर्व कित्थे है, या राजा जी नैशनल पार्क कित्थे है, तो उत्तराखंड दे विच। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट इंडियाज़ फर्स्ट लीथियम रिफाइनरी, इंडिया की पहली लीथियम रिफाइनरी किहड़ी स्टेट दे विच बनाई जाएगी? गुजरात दे विच। गुजरात के चीफ मिनिस्टर द्वारा अनाउंसमेंट की गई है। इंडिया का फर्स्ट रिफाइनिंग लीथियम रिफाइनरी कित्थों बनाई जाएगी? गुजरात दे विच। बेसिकली अगर आप गल करते हैं लीथियम है इंडिया के विच नहीं पाया जाता, इसनूं इंडिया डिफरेंट कंट्रीज़ फॉर एग्जाम्पल चाइना, जापान, इन्हां कंट्रीज़ तो इसनूं इंपोर्ट करता है। ठीक है, तो इंपोर्ट करने ते कॉस्ट पैंदी है, तो इस कॉस्ट नूं रिड्यूस किया जा सके कि बेसिकली मंगाया इन्ना तो जाएगा पर उसनूं सिंथेसाइज करने के लिए इंडिया दे विच रिफाइनरी बनाई गई। कितने सिंथेसाइज करके मंगाना पैंदा है, तो डायरैक्टली मंगा के सिंथेसाइज इत्थे कर लिया जाएगा, तो कॉस्ट नूं रिड्यूस किया जा सके। इस तो इलावा बाकी स्टेट्स रिलेटेड न्यूज़ ने डिस्कस करते हैं। तो सब तो पहले हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर द्वारा एक 18 फीट का स्टैचू रिवील किया गया प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी का। प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी का रिज मैदान शिमला दे विच, रिज मैदान शिमला दे विच। आंध्र प्रदेश द्वारा स्कीम लॉन्च की गई है YSR जगन्ना हाउसिंग कॉलोनीज। चीफ मिनिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी द्वारा YSR जगन्ना हाउसिंग कॉलोनी स्कीम, हाउसिंग कॉलोनीज स्कीम। वेस्ट बंगाल की गल करते हैं तो चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी द्वारा एग्रो इंडस्ट्रीयल पार्क अनाउंस किया गया हुगली डिस्ट्रिक्ट के संगूर दे विच। हुगली डिस्ट्रिक्ट के संगूर दे विच की लगाया जाएगा? एग्रो इंडस्ट्रीयल पार्क लगाया जाएगा। त्रिपुरा की गल करते हैं, त्रिपुरा गवर्नमेंट द्वारा एक यूनीक स्कीम लॉन्च की गई कि बेसिकली पिछले 46 सालों के पॉलिटिकल वायलेंस करके अगर किसी परसन की डैथ हुई है, जिन्हें भी परसन की डैथ हुई है, तो उन्होंने फैमिलीज़ नूं जॉब्स प्रोवाइड करवाई जाएंगी, उन्होंने फैमिलीज़ नूं गवर्नमेंट जॉब्स प्रोवाइड करवाई जाएंगियां इस स्कीम के अंडर। तो त्रिपुरा गवर्नमेंट द्वारा इस स्कीम नूं लॉन्च किया गया। ठीक है जी। नेक्स्ट है सानी प्यारची फेस्टिवल। वैसे शनि कहांगे, शनि प्यारची फेस्टिवल। शनि प्यारची फेस्टिवल है जिहड़ा यह कित्थे ऑर्गेनाइज किया गया? यह कित्थे ऑर्गेनाइज किया जाता है या किहड़ी यूटी दे विच ऑर्गेनाइज किया जाता है? तो इसका आंसर होएगा पौंडीचेरी। ठीक है जी, डायरैक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा क्योंकि न्यूज़ दे विच रहा, डिटेल दे भी डिस्कस करते हैं कि बेसिकली पौंडीचेरी के लैफ्टिनेंट गवर्नर कौन ने? किरण बेदी ने, IPS किरण बेदी। इन्हां द्वारा अनाउंसमेंट की गई कि जिहड़ा यह फेस्टिवल है, अगर इस फेस्टिवल दे विच किसी ने पार्टिसिपेट करना है तो यह फेस्टिवल कित्थे ऑर्गेनाइज किया जाता है? पहला क्वेश्चन तो पौंडीचेरी दे विच भी लॉर्ड सैटर्न टैंपल तिरूनलर डिस्ट्रिक्ट है जिहड़ा उत्थे इसनूं ऑर्गेनाइज किया जाता है। लॉर्ड सैटर्न टैंपल दे विच अनाउंसमेंट की गई कि जिन्हां ने इस दे विच पार्टिसिपेट करना है उन्हां दे लई कोविड-19 नैगेटिव सर्टिफिकेट, लेटेस्ट सर्टिफिकेट जरूरी होएगा। ठीक है जी, इस करके थोड़ा हाईलाइटेड रहा फेस्टिवल। क्वेश्चन डायरैक्ट पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बिहू फेस्टिवल आप डिस्कस कर लिया, ओनम फेस्टिवल असम का है, पोंगल फेस्टिवल तमिलनाडु का है। ठीक है, इसी तरीके रिसेंटली लिली फेस्टिवल मणिपुर का।
ठीक है। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫੈਸਟੀਵਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਸਿਮਿਲਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਸ਼ਨੀ ਪਿਆਜ਼ੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਪੌਂਡੀਚੇਰੀ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਕਾਈਂਡਲੀ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦ ਸੈਸ਼ਨ। ਗੁੱਡ ਬਾਏ।